Hello students, so beta today we are ready with our next program number 15, okay, and if it is also a very important program and children based upon the same logic which we tried in the last class, okay, in the last class children we tried a program in which we were fetching the individual words from a sentence, okay, and as I told you that now all the programs will be based upon the same logic. Okay, so now children see this, see the current program children. This program has appeared in the board exams as well. So now see that what the problem says, that write a program to input a sentence and print the longest word along with its length. Okay children, means we have to extract the largest word, we have to find out the longest word from the sentence and print it, and we have to print its length also. For example, see that the input, we are taking the same input as the last program. I love my India, having 4 words, and children the answer is India, and the length of the word is 5 characters. Okay, so children the logic will remain the same. Okay, we have to extract the individual word from the sentence, okay, and then we will compare it with the word, and if the length of the current word is more than the largest word, we will uh, store the value of current word into that. Okay, so now children look at the program. The main, the class name, scanner is there, enter a sentence, string str equal to s dot next line. So children the same string I am taking. Now see, str equal to I love my India, and full stop at the end. Okay, and that all these characters are stored at the proper index number starting from 0. 10, 11, 12, 13, 14, and the last full stop is at index number 15 children. Okay, so that all these word are having the blank spaces at the index number 1, index number 6 we have the blank space, index number 9 we have the blank space, and at index number 15 children we are having the full stop. Okay, now come to the program. We are having two variables, okay, wd, to extract the individual words, okay, and we have one more variable, that is max. Okay children, and the value of the max is for the time being that is null, और इसकी क्या लेंथ होगी बेटा, 0 होगी अभी. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, एक एक करके वर्ड निकालेंगे, सॉरी एक एक करके यहाँ से अपने सेंटेंस से कैरेक्टर्स फेच करेंगे और उसको चेक करते जाएंगे कि वेदर दैट कैरेक्टर इज अ ब्लैंक और फुल स्टॉप और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट देन वी विल एड इट टू द वर्ड. Okay, so how we will going to do this, now check this out. So children, now see, again we are going to execute a loop from 0 to less than str dot length. So children, the length of the sentence is 16 character, okay, and all these characters are stored from 0 to 15. So first time value of x will be 0, come inside ch equal to str dot caret x. तो कि क्या निकल के आएगा बेटा, ch में कैपिटल I निकल के आएगा. Now check the value of ch. If ch is not equal to blank, true, एंड इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, ट्रू. आपको पता है कैपिटल आई ना तो ब्लैंक है ना फुल स्टॉप है, तो कौन सी लाइन चलेगी, वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच. तो बेटा जो वर्ड है अभी क्या है आपका, ब्लैंक था, अब इसमें आपका कैपिटल आई ऐड हो जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद ये यहाँ तो जाएगा नहीं, कहाँ नहीं जाएगा, एल्स वाले पार्ट में तो जाएगा नहीं, और कंट्रोल यहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, मेरा ऊपर आ जाएगा x प्लस प्लस. नाउ द वैल्यू ऑफ x विल टर्न टू 1, सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 1. तो बेटा अब जरा देखिए क्या वैल्यू आएगी सी एच में. अब सी एच में कितना आ गया बेटा, ब्लैंक स्पेस आ गया. नाउ चेक द कंडीशन, इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, रॉन्ग. आपको पता है अब तो सी एच में ब्लैंक स्पेस है, बट द फर्स्ट कंडीशन इज नाउ रॉन्ग हियर. और आपको पता है कि दैट व्हेन टू कंडीशन आर देयर विद द एंड ऑपरेटर, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू. लेकिन पहली कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई है, तो कंट्रोल विल गो टू द else part. And children, when your control moves to the else part, what it means, that we have finished with the word which we were creating.
तो बेटा जो वर्ड आप फॉर्म कर रहे थे वो वर्ड आपका कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये वर्ड आपका इस समय कंप्लीट हो गया है। कौन सा वर्ड है बेटा? ये आई। तो ये जो कि सेंटेंस का पहला वर्ड था, आई लव माई इंडिया। तो आ जाइए एल्स में। अब आपको क्या पता लगाना है? वेदर इट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड और नॉट। सो चिल्ड्रन, फॉर दैट पर्पज वी आर कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ वर्ड। मैंने क्या चेक किया? वर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स डॉट लेंथ। कि क्या बेटा वर्ड की लेंथ मैक्स की लेंथ से ज़्यादा है? तो मैक्स में बेटा अभी क्या स्टोर है? ब्लैंक। आपको पता है कि ये भी अभी नल है, इसकी लेंथ कितनी है? 0। तो बेटा आई की लेंथ कितनी है? 1। और मैक्स की लेंथ कितनी है? 0। तो इट विल चेक वेदर द 1 इज ग्रेटर देन 0। यस। तो देन डू वन थिंग, मैक्स इक्वल टू वर्ड। तो बेटा तुरंत अपने वर्ड की वैल्यू को मैक्स में कॉपी कर दीजिए। तो ये देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी मैक्स की? अब आई हो जाएगी और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 1। तो बेटा पुरानी वैल्यू रिमूव हो गई और अब मैक्स में आई आ गया। ठीक, इसके बाद फिर आगे चलिए इन द नेक्स्ट लाइन, वर्ड इक्वल टू नल। और अब देखिए मैंने वर्ड को यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। अब क्यों क्यों ब्लैंक कर दिया? टू प्रिपेयर द नेक्स्ट वर्ड। अब तो बेटा ये आपका चल गया, एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब ये लूप ओवर हो गया। नाउ द कंट्रोल विल मूव अप एक्स प्लस प्लस। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स विल बिकम 2। सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 2 पे क्या मिलेगा बेटा आपको? लव का एल मिल जाएगा। नाउ चेक वेदर द सी एच इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप। सही बात है। L is neither blank space nor it is full stop. Both the condition are true. Word plus ch. तो देखिए वर्ड में आपका L ऐड हो गया। फिर इसके बाद आगे चलिए x प्लस प्लस। नाउ वी विल एक्सट्रैक्ट द O फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 3। O इज ऑल्सो नॉट ब्लैंक एंड नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, वर्ड प्लस ch। तो O भी ऐड हो जाएगा। फिर ऊपर चलिए x प्लस प्लस। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 4। 4 में ch पे क्या निकल के आएगा? एस टी आर डॉट कैरेट 4 v। V is also not blank and not equal to full stop, तो word plus ch। तो ये देखिए V भी ऐड हो गया L O के आगे। फिर आगे चलिए x प्लस प्लस। नाउ द x will become 5। ch equal to str dot caret 5, we will extract the e। e is not blank, not equal to full stop, word plus ch। e will be also added to the word। ओके, आफ्टर दैट चिल्ड्रन कंट्रोल विल गो अप x प्लस प्लस 6। और ये देखिए बेटा जैसे ही 6 पे आओगे सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 6, फिर से क्या मिल जाएगा सी एच में? ब्लैंक स्पेस। ठीक है, और आपको पता है दैट वेन एवर वी एनकाउंटर अ ब्लैंक स्पेस इट मीन्स द वर्ड इज फिनिश्ड। और ये देखिए सही बात है, वर्ड में इस समय क्या स्टोर हो गया है? लव। कंप्लीट वर्ड मेरा तैयार हो गया है और इसकी अगली इंडेक्स पे जाते ही मुझे क्या मिल गया? ब्लैंक। और जैसे ही ब्लैंक मिल गया 6 पे तो हम समझ गए कि वर्ड खत्म हो गया। तो बेटा आइए फिर से चलते हैं। सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 6। नाउ द सी एच हैज़ द वैल्यू ऑफ ब्लैंक। If ch is not equal to blank, wrong. You know that the first condition will get wrong and the control will shift to the else. And again children we will compare the length of the WD with max। तो अब जरा चेक करिए क्या लेंथ है इस समय वर्ड की? लव स्टोर है तो क्या लेंथ है बेटा? 4। और मैक्स की लेंथ कितनी है यहाँ पे? 1। तो ये चेक करेगा वेदर वर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स डॉट लेंथ। इज 4 इज ग्रेटर देन 1? यस, आपको पता है कंडीशन ट्रू है। तो मैक्स इक्वल टू वर्ड, चिल्ड्रन द वर्ड विल स्टोर इट्स वैल्यू इनटू द मैक्स। तो बेटा अब जो मैक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे लव हो जाएगी। ठीक है, आई हट जाएगा और अब यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हो गई? लव स्टोर हो गई मैक्स में। इसके बाद आगे चलिए, वर्ड इक्वल टू नल। वर्ड फिर से मेरा नल हो गया। ठीक है, क्यों नल कर दिया? अगला वर्ड तैयार करना है। ठीक है, और अब आगे चलिए इसके बाद x प्लस प्लस। अब बेटा 7 पे आएगा। आपको पता है वर्ड नल है तो 7 पे क्या मिलेगा? माई का m। तो m जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि ना ब्लैंक है ना फुल स्टॉप है। फिर आगे चलिए x प्लस प्लस 8। 8 पे क्या मिलेगा? y, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर आगे चलिए x प्लस प्लस 9। और जैसे ही 9 पे आओगे बेटा, 9 पे आते ही फिर से क्या मिल गया मुझको? सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट एक्स ब्लैंक। और जैसे ही ब्लैंक मिलेगा यू नो दैट द फर्स्ट कंडीशन विल बी रॉन्ग, कंट्रोल विल शिफ्ट टू द एल्स। और फिर से चेक करेंगे क्या वर्ड की लेंथ मैक्स की लेंथ से ज़्यादा है? तो बेटा चेक करिए, वर्ड की लेंथ कितनी है? माई की 2। और मैक्स में क्या स्टोर है? लव। लव की लेंथ कितनी है इस समय? 4। इज 2 इज ग्रेटर देन 4? नो, है ना। तो बेटा ये जो करंट वर्ड आया है माई,
ये मैक्स के वर्ड लव से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब की बार ये लाइन नहीं चलेगी, ओके। द वर्ड विल नॉट स्टोर इट्स वैल्यू इनटू द मैक्स, ओके। आपको पता ये तभी होगा जब वर्ड की लेंथ मैक्स की लेंथ से ज़्यादा हो। तो अब की बार ये कंडीशन रॉन्ग हो गई है। आगे चलिए, वर्ड इक्वल टू नल। वर्ड फिर से मेरा नल हो गया, क्यों? क्योंकि अब लास्ट वर्ड की तैयारी करनी है। x प्लस प्लस, द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 10, सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 10, क्या मिलेगा बेटा? इंडिया का i। तो i आपने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आगे चलिए, x प्लस प्लस 11, 11 पे क्या मिलेगा? n। n इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ब्लैंक, नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, वर्ड में ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए n भी ऐड हो गया। ऐसी 12 पे d मिलेगा, वो भी ऐड हो जाएगा। 13 पे i, ये भी ऐड हो जाएगा। 14 पे a, ये भी ऐड हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, सो ऑल दीज कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स नंबर 10, 11, 12, 13, 14, they will be added to the word character by character, okay. After that children, finally the loop of x will go up, okay, and it will reach to the index number 15, you know, okay. And when you will fetch the character from the index number 15, ch equal to str dot caret 15, तो आपको पता है क्या आ जाएगा यहाँ पे ch में? फुल स्टॉप। If ch is not equal to blank and ch is not equal to full stop, wrong बेटा, the second condition will be wrong, कि ch की वैल्यू फुल स्टॉप नहीं है, नहीं, अब तो फुल स्टॉप हो गई है। तो यानी कि सेकंड कंडीशन रॉन्ग हो गई। और आपको पता है बेटा कि जब आप फुल स्टॉप पे आ गए हो तो इसका क्या मतलब है कि दैट यू वर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, आपका सेंटेंस एंड हो चुका है और अब आप अपने सेंटेंस के एंड पे आ चुके हो। तो यानी कंट्रोल विल शिफ्ट टू द एल्स, और यानी आपका आखिरी वर्ड भी तैयार हो चुका है, कौन सा? इंडिया। तो नाउ इट विल चेक इफ द वर्ड लेंथ, तो वर्ड की लेंथ कितनी है बेटा? 5 इज ग्रेटर देन मैक्स डॉट लेंथ। मैक्स में क्या स्टोर है बेटा? लव। लव की लेंथ कितनी है इस समय? 4। इज 5 इज ग्रेटर देन 4, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो मैक्स इक्वल टू वर्ड, तुरंत बेटा ये जो वर्ड है अपनी वैल्यू कहाँ स्टोर कर देगा? मैक्स में। और क्या आ जाएगा मैक्स में? इंडिया स्टोर हो जाएगा, और जो लव है ये हट जाएगा, है ना। आपको पता है जब भी आप किसी वेरिएबल में एक न्यू वैल्यू स्टोर करते हो, सो देन द ओल्डर वैल्यू गेट्स रिमूव्ड, ओके। सो नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ द मैक्स विल बी इंडिया। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट लाइन, वर्ड इक्वल टू नल। वर्ड को हमने फिर से खाली कर दिया। कंट्रोल विल गो अप, एक्स प्लस प्लस। अब एक्स की वैल्यू बेटा कितनी हो गई यहाँ पे? 16। इज एक्स इज लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ, क्या 16 बेटा 16 से कम है? नो आपको पता है कि सेंटेंस की लेंथ 16 थी, तो 16 इज नॉट लेस देन 16, सो योर लूप विल टर्मिनेट नाउ, कंडीशन विल बी रॉन्ग। एंड नाउ टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ओके, वी आर मूविंग टू द next sentence after the loop body and see what it says, longest word is max। तो बेटा मैक्स की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, क्या प्रिंट होके आ जाएगा? इंडिया। एंड द लेंथ इज मैक्स डॉट लेंथ, बेटा जो मैक्स की लेंथ है वो भी निकाल के प्रिंट कर दीजिए। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 5। तो ये देखिए आपका आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है क्लास। तो आई होप कि यू गॉट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, ओके। So children, as I told you that the first 5 lines are going to remain same in all these program। ठीक है, आपने क्या देखा कि वही सेम लास्ट प्रोग्राम वाला लॉजिक हमने अप्लाई किया है। एक लूप चला दिया पूरे सेंटेंस पे 0 से लेके उसकी लेंथ तक, एंड वी विल एक्सट्रैक्ट ऑल द इंडिविजुअल characters from that sentence। we will check whether those characters are blank or full stop or not, and we will keep adding all these characters to the word until we get a blank space or a full stop in the sentence, ठीक है। So children, upon the same logic we will attempt more problem in the future, okay। So when we will meet in the next class, we will attempt a new problem based upon the same logic, okay children। Thank you very much।